Hello everyone, Himanshu this side. Welcome back again. And today we are going to start with our chapter and the unit called as electrostatic. And in this electrostatics, we have two chapters. The first chapter is electric field and charges, and the second chapter is electrostatic potential and capacitance. So सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस को. So let us start. So this is unit called as electrostatics. So what is electrostatics? Electrostatics फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम डील करते हैं फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स which were created due to charges at rest. Electro means charge, rest means at statics means at rest. So basically electrostatics is the branch of physics where we study about the fields and potentials due to charges at rest. So electro means charge and statics mean at rest. So physics की वो ब्रांच जहां पर हम चार्जेस एट रेस्ट से डील करते हैं is called as electrostatics. So let us start chapter electric fields and charges. तो हमारा जो चैप्टर रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस, वहां सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर चार्जेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. सो इनिशियली वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट चार्जेस आर एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउ डू दे बिहेव. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जेस की. सो जस्ट लाइक मैटर व्हिच हैज मास, also matter has a property called as charge. Mass is also a fundamental quantity, charge is also a fundamental quantity which exists in nature. So what is charge? How would you define charge? In simple words we can say that charge is a fundamental quantity which exists in nature by the virtue of which two bodies experience a force of attraction or repulsion. ठीक है, so what are charge? These are fundamental quantities. What do they do? If a body has charge and such similar body come close to each other, then they might attract each other or repel each other. So we will now further deep dive in about charges and their property. ठीक है, तो एक important बात जो है that for a body to have charge, it must definitely have mass. So अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसमें मास होना बहुत जरूरी है. विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट. एग्जाम्पल, फोटोन मासलेस, रेस्ट मास कितना होता है फोटोन का? 0, एज वेल एज चार्जलेस. सो क्या इसका मतलब यह है कि हर वो बॉडी जिस पे मास है उस पे चार्ज होगा ही होगा? नॉट सो. ऐसा सही नहीं है कहना. हर बॉडी जिस पे मास है इट मे पोजेस चार्ज और इट मे नॉट possess charge, but for a body to have charge
it should satisfy the condition that it should have mass. Example क्या है? न्यूट्रॉन, mass but no charge. ठीक है, क्लियर? अब कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो नेचर के एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन है? वो है आपके बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. एक बार उनका कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन हैज चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Neutron is chargeless, and electron it has a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb but of different polarity. ठीक है, अगर मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 to the power minus 19 kg. ठीक है, whereas neutron also can carry similar charge 1.679 something into 10 to the power minus 27 kg. सॉरी, एक मिनट, minus 27 आता है. Proton and neutron both have same mass. And talking about electron, electron have mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ठीक है. Now talking about some properties of charges. So first property, very simple, that like charges repel each other, whereas unlike charges attract each other. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बोथ तरीके की फोर्सेस चार्जेस के बीच में प्रेजेंट होती है. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव. ठीक है. सेकेंड, चार्जेस आर अ स्केलर क्वांटिटी, है ना. इनकी ऐसा यूनिट कितनी होती है? कूलम. एंड सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम. एंड 1 कूलम इज 3 into 10 to the power 9 स्टैट कूलम. ठीक है, क्लियर. Now next property, charges are additive in nature. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है that you can simply add charges. For instance, a body is neutral. It has equal amount of positive charge and equal amount of negative charge. So जब हम उन्हें sum करेंगे, the net charge that a body contains is 0. ठीक है. So और भी ऐसे कह सकते हैं कि सपोज आई हैव अ बैग, it has plus 2e charge plus 3e charge minus e charge. So the net charge that the body can hold is plus 5e minus e, that is 4e. Next, charges are conserved in nature. That is, for an isolated system, the net charge is always conserved. That is, charges can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another. इसका अगर एक एग्जांपल समझाना है फिजिक्स में, so I can take the example of beta decay where neutron breaks into a proton plus a electron plus a neutrino. अगर चार्ज कंजर्वेशन कराए एंटी न्यूट्रिनो तो ये कितना होगा? Q पे चार्ज 0, इस पे प्लस E, then minus E, and it has 0. So net charge before is 0, net charge after is also 0. This equation shows conservation of charge. ये किसकी इक्वेशन है? बीटा डिके की
an unstable nucleus undergoes beta decay in order to attain stability. ठीक. Next, charges are quantized in nature. इसका मतलब क्या है? You all know that the smallest charge that can exist in nature is the charge on electron, which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. अब स्मॉलेस्ट चार्ज है अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो अगर आपको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करना है तो बेसिकली क्या ट्रांसफर कर रहे हैं आप? वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेक्स प्लेस हो रहा है. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 200 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2000 इलेक्ट्रॉन होंगे. How can you divide electron? Electron is not further divisible. So only integral values of electron can be transferred from one body to another, and this property is called as quantization of charge. That is Q equals to plus minus Ne. That is where N is integer. So integral multiple of charge on an electron can be transferred from one body to another. ठीक है, so only integral multiple of charge can be transferred from one body to another. This is quantization of charge. Next property is charges are invariant in nature. अब इसका क्या मतलब है? that charges are invariant in nature. It means that आप किसी भी फ्रेम से चार्ज को ऑब्जर्व करिए, उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम. फॉर एग्जांपल, यू ऑब्जर्व अ इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ, एंड देन यू ऑब्जर्व अ मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मून. सो दोनों टाइम पर, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में चार्ज की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम. दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. दैट इज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो चार्जेस आर independent of the frame of reference. So these were some basic properties of charge. ठीक है, तो चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है. फिर आपको क्वार्क थ्योरी के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं. According to quark theory, less than the charge of an electron, that is the fractional charge, can also exist, but it cannot exist independently. ये composition में exist करता है. देखिए न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या है अपने पास? न्यूक्लियॉन्स आर न्यूट्रॉन्स and protons. They belong to a family called as baryons. ठीक है, तो ये बैरियॉन्स है, और बैरियॉन्स का चार्ज कॉम्पोजिशन क्या होता है? क्यू, क्यू और क्यू. क्वार्क कॉम्पोजिशन से कहते हैं क्वार्क कॉम्पोजिशन. दिस इज और क्वार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग CuT इन सबके पास होता है +2/3 E चार्ज, एंड बाकी जितने भी क्वार्क्स होते हैं उन सबका चार्ज कितना होता है? अदर -1/3 E. ठीक है, Cu में क्या है? चार्म, अप एंड टॉप. ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसे मिलके बना है? फर्दर फ्रैक्शनल चार्ज से मिलके बना है, विच इज UDD, अप डाउन डाउन, प्लस 2/3 E -1/3 E -1/3 E, which gives 0. On the other hand, proton, it is made up of 2 up quarks and 1 down quark. It is plus 2/3 E plus 2/3 E and -1/3 E. तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 4 - 1/3 E, that is E plus E. ठीक है, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस E. सो दिस इज
क्वार्क थ्योरी, क्वार्क कंपोजिशन। इससे डिटेल में आप तब पढ़ेंगे जब आप कभी एमएससी करेंगे एंड वहां पर आप पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर डिटेल दैट इज क्वार्क थ्योरी। और इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एमएससी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एंड देन वी विल फिनिश दिस वीडियो। शॉर्ट रखने वाले हैं आज का वीडियो हम, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, ठीक है, क्लियर। So question 1 on your screen is how many electrons must be removed from a piece of metal to give it a charge of 1 into 10 to the power minus 7 coulomb, ठीक है। तो this is based on the property of quantization of charge, q is equal to plus minus n is and n becomes q by e। so, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, नेट चार्ज कितना होना चाहिए 1 into 10 to the power minus 7 अपॉन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो नेट कितना हो जाएगा 1 upon 1.6 into 10 to the power 12, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 by 16 into 10 to the power 12, इसमें 100 by 16 लिख देते हैं ऐसे, into 10 to the power 11, that becomes 6.25 into 10 to the power 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आंसर आएगा 6.25 into 10 to the power 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कूलम नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर, ठीक। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज अ कंडक्टर हैज दिस मच अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। द कंडक्टर हैज, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, हमें पता लगाना है। देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेट सी बात है इसके पास क्या होगा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए होंगे तो पीछे क्या बच गया होगा पॉजिटिव चार्ज। अब कितनी डेफिशिएंसी रही होगी Q इक्वल्स टू एन ई, एन कितना हो गया Q बाय ई। Q कितना है 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, कैंसल आउट, तो ये कितना आया 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड रीजन में से भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपने डायरेक्ट ही पढ़ा है, चार्ज इज इनवेरिएंट, यस यू हैव अंडरस्टूड चार्ज इज इनवेरिएंट एंड चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए अगर आपको असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है ना तो आप क्या कीजिए कि आप ना पहले रीजन को मत ही पढ़िए, सिर्फ असर्शन को पढ़िए एंड फाइंड आउट कीजिए कि असर्शन ट्रू है कि नहीं। चार्ज इज इनवेरिएंट, यू नो दैट दिस असर्शन इज ट्रू। नाउ अपने ही मन में इसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, व्हाई इज चार्ज इनवेरिएंट, बिकॉज इट डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड देखिए कि क्या ये रीजन गिवन है, इफ बोथ आर देयर प्रेजेंट देयर सो यू कैन से दैट। सो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि दोनों क्या है प्रेजेंट है, सो यू कैन से दैट असर्शन एंड रीजन, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए if there are 100 free electrons access on a body then what will be the charge on it। मतलब एक बॉडी पे 100 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो what will be the net charge on the body। कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, अगेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, एन कितना है 100, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 17 कूलम। अब एक्सेस में है तो चार्ज कैसा होगा नेगेटिव, व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन इट, इट विल बी माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 17 कूलम। So these were some questions on the properties of charges। Basically अगर यहाँ से कहीं से बुला भटका क्वेश्चन आएगा भी या आपसे कुछ पूछा भी जाएगा, so that would either be based on quantization of charge और invariance of charge, या फिर कंजर्वेशन से भी कुछ पूछ सकते हैं। So hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। This is only the starting and as we proceed further डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा एंड कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आपको होती रहेगी, डेप्थ भी बढ़ने वाली है।
एंड आपके लिए क्या टास्क है, आपके लिए टास्क ये है कि आपको जो भी असाइनमेंट मिलते रहते हैं उन्हें आप डे टू डे सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए हर वीडियो के, ताकि हम आपके लिए सोल्यूशन वाला वीडियो भी ला सकें विद रिस्पेक्ट टू योर इंटरेस्ट, कि आपको कितना इंटरेस्ट है, कि आप कितना उसे समझ पा रहे हैं, कितना आप असाइनमेंट्स को सॉल्व कर रहे हैं। इफ यू आर सॉल्विंग द असाइनमेंट ऑन योर पार्ट, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग द वीडियो सोल्यूशन वीडियोस। ऑल्सो कुछ बात आपको बतानी थी कि we are planning to introduce 3 types of assignment, which would be assignment A, B and C। तो assignment A का जो लेवल होगा वो बोर्ड के बराबर होगा। assignment B we will further level it up to NEET exam level, ठीक है। and then in assignment C we will do the questions from JEE mains and advanced। so in this way as per your choice you can prepare and select your examinations for which you are preparing and do the assignment and see the solutions। so thank you so much, keep watching, keep learning।